Right. Today our topic is journal entry. What we are going to discuss आज हम पढ़ेंगे journal entry. What is journal entry? What is journal entry? Journal entry means what? Journal entry किसे कहते हैं आप? It is a book which records the transaction. ये एक ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस. व्हाट आर ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं आप? ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजैक्शन मींस बाइंग एंड सेलिंग और ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज ए बी. बिजनेस में दो लोग होते हैं. एक होता है जो सेल करने वाला एंड दूसरा होता है परचेज करने वाला. So इन दोनों के ट्रांजैक्शन को अगर आप रिकॉर्ड करेंगे, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? Where we should record this transaction? These transactions of a business are recorded in journal entry. So how to record the journal entry is very important topic which we should know. Without journal entry, you can't do the accounts. Either you are going for a ledger, column, even trial balance, or even if you go for a final accounts, you require journal entry is very important. So journal entry is based upon three golden rules or golden rules of accounting. What is golden rules of accounting? Real account, nominal account and personal account. Three golden rules of accounting है जो आज हम देखेंगे. Real account का रूल क्या है? What is real account? Real account says debit what comes in, credit what goes out. Nominal account says debit all expenses and losses. Credit all gains and income. Then personal account debit the receiver, credit the giver. इसको हम सिंपल वे में समझेंगे in a simple manner, right? Real account debit what comes in means अगर कोई चीज बिजनेस में आ रही है आपके पास, so कौन सी चीज? Assets. So real account deals with all assets. Real account deals with assets. Now what are assets? You know that assets किसे कहते हैं आप बिजनेस में? Land, furniture, machinery, buildings, these all are the assets. Cash, right? So ये चीजें अगर आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे? Debit. Same things if they are going away from the business, it is credited. So debit what comes in, credit what goes out. Simple वे में समझना है. जब asset आ रहा है तो आप क्या करेंगे? When asset is coming, debit, and when asset is going, क्रेडिट. एग्जाम्पल के तौर पर सपोज यू आर ए बिजनेसमैन. आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो. एज फॉर रनिंग ए बिजनेस व्हाट यू रिक्वायर्ड एसेट्स. एसेट्स चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे? एसेट्स खरीदो. जैसे ही आप एसेट्स खरीदेंगे आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा. तो जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे आप? एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आपने एक फर्नीचर खरीदा. फर्नीचर आपके पास आया तो अकाउंट्स में टू साइड्स होते हैं. ऑलरेडी यू नो दैट अकाउंट हैज टू साइड, डेबिट, क्रेडिट. as soon as the furniture is coming in, furniture is debited. Furniture account is debited. Next, when furniture is coming in, something will go away. कुछ ना कुछ तो आपके पास से जाता है. फर्नीचर किस पे खरीदते हो? कैश पे खरीदते हो. तो जब आप फर्नीचर खरीद रहे हो, what will happen? Furniture comes in and cash goes out. So what entry you will make? Journal entry कैसे हो रही है आपकी? Furniture account data to cash account. Journal entry क्या बनी आपकी? Furniture account data to cash account. Furniture debits, cash credit. Why? What is the reason? Furniture debit क्यों हुआ यहाँ पे? कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? What is furniture? Furniture is asset. Asset comes in debit. ये clear rule है. What comes in debit? What comes means what? ये what का meaning क्या है? What is nothing but asset. This what goes out means what? What is nothing but asset. So asset comes in debit, asset goes out credit. तो क्या करना है आपको? फर्नीचर आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट. सेम वे बिल्डिंग्स खरीदे आप, बिल्डिंग्स अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. उसी तरह से आप और भी बहुत सारे कंप्यूटर खरीदे बिजनेस में रन करने के लिए. आप कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. कंप्यूटर आया, कैश गया. So real account deals with all assets. समझ में आई बात?
जब कोई चीज बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट करना है, कोई चीज बिजनेस से जा रही है तो उसको क्रेडिट करना है। ये कोई चीज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग होता है एसेट आ रहा है डेबिट करो, एसेट जा रहा है क्रेडिट करो। सो हाउ मेनी एसेट्स आर देयर, यू शुड नो क्लियरली। ये रूल को समझने के लिए आपको एसेट्स कितने हैं अकाउंट्स में वो समझना जरूरी है। सो व्हाट आर एसेट्स? से वंस फर्नीचर, land and buildings, plant and machineries, computers, motor cars, vehicles, again furniture over already। ऐसे जितने भी चीजें जो आप बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हो, दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट्स, नॉट फॉर सेलिंग, है ना। एसेट्स आर मींट फॉर यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा से ज्यादा दिन आप उसको चलाना चाहते हो एसेट्स को, आप उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते हो। एसेट्स और गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या है? एसेट आप इस्तेमाल करते हो और गुड्स को क्या करते हो? आप बेचते हो, खरीदते हो। फॉर एग्जांपल आई हैव वन शॉप, आई हैव ए कंप्यूटर शॉप। मेरी एक कंप्यूटर शॉप है जिसमें मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं। आई एम परचेजिंग द कंप्यूटर एंड आई एम सेलिंग द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज अ गुड और एसेट फॉर मी। गुड। कंप्यूटर क्या है मेरे लिए? गुड्स है। गुड्स है। अगर वही मेरी फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर इज एसेट और ए गुड फॉर मी। फर्नीचर की शॉप है, मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, फर्नीचर बेचता हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। कंप्यूटर मेरे लिए क्या हो गया? यहाँ पर फर्नीचर की शॉप में कंप्यूटर बिकम एसेट्स एंड कंप्यूटर की शॉप में फर्नीचर बिकम्स एसेट। समझना ही बात? यानी जो शॉप आप चला रहे हो, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, वो चीज आपके लिए गुड होता है। कंप्यूटर शॉप चला रहे हो तो कंप्यूटर क्या हो गया आपके लिए? गुड हो गया। फर्नीचर शॉप चला रहे हो तो फर्नीचर क्या हो गया आपके लिए? गुड हो गया। तो ये गुड्स को आपको समझना है, गुड्स कौन से और एसेट कौन से। ओवरऑल आप दिमाग में रखना है, सिंपल है। रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डील्स विद द डिफरेंट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। कितने एक्सपेंसेस होते हैं? सैलरीज पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, एंड देन यू विल पे द डिफरेंट एक्सपेंसेस। बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। खर्चे, बगैर खर्चों के बिजनेस होता है क्या? कोई ऐसा बिजनेस बता दो सर जिसमें खर्चा नहीं है, देयर इज नो एक्सपेंडिचर। कोई ऐसा बिजनेस है क्या दुनिया में? कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई खर्चा नहीं? नो बिजनेस। तो आपके डेफिनेटली एक्सपेंसेस आर देयर। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। जो खर्चे होते हैं उसको क्या करना है आपको? डेबिट करना है। और जो इनकम्स होते हैं उसको क्या करना है आपको? क्रेडिट करना है। दो भी चीजें होते हैं बिजनेस में, एक एक्सपेंडिचर, एक इनकम। तो आपको समझना है एक्सपेंसेस क्या है। व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस? बोलिए, व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस? रेंट, सैलरीज, फीस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, है ना। आप दुकान लगा कर बैठे हो, रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है आपको, ये और सैलरीज देना पड़ता है। जो वर्कर्स को आप लगाए वहां पर वेजेस देना पड़ता है आपको। These all are the expenses. So whenever you will see the expenses in journal entry, it is debited. जैसे ही आपको expenses देखते हो उसको क्या करना है? आपको डेबिट करना है। सर जैसे कि एग्जांपल है वेजेस, रेंट, सैलरीज, डिस्काउंट्स, these all are the expenses. इन सबको डेबिट करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। Then what are incomes? Incomes किसे कहते हैं? इनकम का मीनिंग क्या है? What is the meaning of income? इनकम का मतलब गेन। Why you are doing the expenses? What is the reason? खर्चा क्यों कर रहे हो आप बिजनेसमैन? Why the businessman is doing the expenses? To earn the profit. Business expenses क्यों कर रहा है? To get the profits. तो profit के रूप में क्या होता है आपकी? Sales. Expenses क्या है? Rent, wages, salaries. और income क्या है आपका? Sale. Anything received, commission received, discount received, interest received, anything received is income. तो आपको अगर एक जर्नल एंट्री बनाना है, सर जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? रेंट, सैलरीज, वेजेस, अकाउंट डेटा टू कैश, है ना। पहले हम रियल अकाउंट का देखें जर्नल एंट्री कैसे बनती है। अभी हम क्या देख रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे बनती है? कैसे बन रही है उसकी? एग्जांपल, आप रेंट पे की, रेंट पेड इज अ क्वेश्चन, रेंट पेड क्वेश्चन, वेजेस पेड, सैलरीज पेड, दिस ऑल आर द एक्सपेंसेस। इसको कैसा रिकॉर्ड करेंगे? रेंट अकाउंट डेटा, because rent is debited, because here it says debit or expenses, तो मैंने expenses को क्या किया? डेबिट किया। rent account data to cash account, salaries account data to cash account, wages account data to cash account। ये कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है ये समझिएगा।
सर ये कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज़ व्हेन यू पे द रेंट व्हाट यू विल पे स्टोन्स, स्टोन दिए क्या पे करते हैं आप कैश। रेंट पे करेंगे तो रेंट के बदले आप क्या देंगे? कैश। कैश इज गोइंग, कैश इज रियल अकाउंट। क्रेडिट कार्ड गोस आउट, डेबिट कार्ड कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गोस आउट। कैश इज रियल अकाउंट। कैश का नेचर क्या है? रियल अकाउंट। तो इसीलिए क्या कर रहे हो आप? रेंट अकाउंट डेटा आर टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेटा आर टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेटा आर टू कैश अकाउंट। इस तरह से जो भी खर्चा है उसको डेबिट करो और कैश एवरी एक्सपेंसेस के साथ कैश क्रेडिट होता है। हर एक्सपेंसेस के साथ जब भी आपको क्वेश्चन में नजर आना, सैलरीज डेबिट कर दो, वेजेस डेबिट कर दो, रेंट डेबिट कर दो, परचेजेस डेबिट कर दो। लेकिन सर क्रेडिट में क्या लेना? सबके साथ कैश। if it is cash transaction, if it is cash transaction, okay, so this is the clear cut nominal account. Real account एक बोल रहा है, nominal account एक बोल रहा है। Last is personal account. Personal account we will see next week, okay? Good. Thank you.